Okay. Good evening, my dear students. Today we'll start a new beginning. We'll start a new chapter that is a breakfast. Okay. Although before starting this chapter, we should know some introductions. Okay. So let's begin. We have already completed earlier. We have already completed the French classical menu. We have already completed the cover and accompaniment. We have already completed the other chapter like types of menu and menus. Okay. Now today we will start with a very fresh chapter, probably the second last chapter of the F&B service. Okay, that is a breakfast. Okay, so before I start, if I had to ask you that did you ever know what are the different kinds of meals actually provided, what are the different kinds of meals actually provided to a guest, or as a human, what kind of meals you will get, that may I know, do you know that? Okay, so I will tell you one by one. Okay, so the first thing, we should start with our day with the breakfast. ओके, विच इज़ इसके बारे में डिटेल चर्चा जो है हम थोड़ी देर बाद करेंगे उसका इंट्रोडक्शन में, बट वी शुड स्टार्ट आवर डे to have a breakfast. After that, after having a breakfast, we should have a meal called 11 or morning tea coffee. Okay, 11 is actually a 11 a.m. tea. Okay, 11 breakfast. After that there is an 11 that will served you around 11 o'clock, and breakfast is around 7:30 to 10, 7 to 10. It's depend on the people to people, but breakfast is generally will serve from 7 to 10 o'clock. Okay, and after that, after the breakfast, immediate breakfast, we will start 11 so 11 actually it is start around 11 o'clock. That is why it names as 11 ओके, तो इसके साथ हम हर मील के साथ उसका फ्रेंच टर्म भी पढ़ेंगे. ठीक है, एज यू नो, फ्रेंच इज़ एवरीथिंग इन द होटल और इन अ होटल इंडस्ट्री. द फ्रेंच इज़ बेसिकली एवरी डैम थिंग, लिटरली आई एम सेइंग. Why so? Why French is everything? That you have to understood. The French name of the breakfast is called as petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit means small and déjeuner means lunch. So generally small lunch can be considered as breakfast. That is why the French name of the breakfast is called petit déjeuner. After the breakfast, the timing is 7:30 to 11. After the breakfast, you should have 11 or gautre. 11 the French name of 11 is called as gautre. 11 actually 11 a.m. tea. Okay, with some snacks or something. After 11 there will be a brunch. ओके, ब्रंच इज इक्वल टू दो चीज़ मिला के होता है, आइदर ये होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ये दोनों को मिलाओगे तो यू विल गेट ब्रंच. तो ब्रंच इज जनरली सर्व्ड बिटवीन 11 till 2 o'clock, 1:30 2 o'clock. Okay, which comprise of some breakfast item and some lunch item too, but light lunch item. Okay, those who cannot have the breakfast, they will prefer to have brunch, क्योंकि ब्रंच थोड़ा लेज़ी होता है. जो लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं उन लोगों के लिए ब्रंच जो है दैट इज़ द मेजॉरिटी, दैट इज़ द मेन थिंग. समझ में आ गया? तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद जो है
11 cess और उसके बाद brunch. After brunch you can have your lunch. So the French term of breakfast is petit déjeuner. French term of the 11 cess is gautre. Brunch is bruncheon and lunch is déjeuner. ठीक है. लंच का टाइम इज अराउंड 1 o'clock to 3:30. आफ्टर इमीडिएट लंच from 4 to 6 o'clock you will be having afternoon tea. Okay, or it can be also called a high tea. If it is a afternoon tea, then there is no such snacks will be given to you. If it is a high tea, then tea accompanied with snacks. The literal time is 4:30 to 6:30. Okay, 4:30 to 6:30, right? 4:30 to 6:30. After high tea or after afternoon tea, you will have a dinner which is served between 7:30 to 11 o'clock. The French term is dîner. Dinner is dîner. Dîner. Okay. Lunch, high tea, then dinner. After dinner, the last meal is called as supper. That is actually a late night meal which is served between 1 to 11:30 to 2 a.m. Okay, a light snacks, light soup, sandwich can be given, and the French term of supper is called a souper. Souper. Okay, the French term is called as souper. So let's recall what are the things we started with the day with a breakfast. So the French term of the breakfast is called as petit déjeuner. Timing, it's 7 to 10 o'clock. After that you will have a 11 cess or gautre, which is served between 11 till 11:30. Okay, 11 till 11:30, half an hour. It's just a tea. After that you will having a brunch which is start between again 11:30 till 2 o'clock. Okay, comprise of breakfast and some light lunch item, those who are for lazy. After that from 2 o'clock 1:30 till 3:30 there is a time of lunch. Lunch, the French term of lunch is déjeuner. After lunch there is a high tea or afternoon tea. High tea or afternoon tea, which is served between 4 to 6 p.m. or 6:30 p.m. Okay, if snacks is served, then if snacks is served, okay, then it is high tea. If snacks is not served, it is afternoon tea. After that dinner, but diner, which is start from 7 till 11 o'clock. Last meal of the day is souper or supper, which is a late night meal. Okay, these are the meal that you should understand or that you should know. So let's check what we should read in the breakfast. Breakfast courses, types of breakfast and related term, and as well as the breakfast cover we will know. So let's check the introduction. Breakfast literally means breakfast, that is a meal eaten after 7 or 8 hours of sleep. When we are slept at night, we generally do not consume any food apart from supper. Okay, supper also have some purpose. Those who are late, those who are gone to sleep on the late night, supper for them actually. So otherwise, after a long sleep of 7 to 8 hours, we generally like to consume a breakfast. We generally break our fast. That is a breakfast. Breakfast is a combination of two words. That is, I have already told you. The French term of the breakfast, I have already told you. Petit déjeuner, the meaning is little lunch. And dietitian calls it is the most important meals of the day. As per rule, breakfast should be look like a king. Lunch should look like a men or whatever as an human, and a dinner should be look like a Lilliput. Okay. Types of breakfast.
यहाँ पे 4 ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, इंग्लिश, इंडियन, बट कायदे से देयर आर 5 काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट. द लास्ट ब्रेकफास्ट आई विल टेल यू, गाइड यू, अ स्मॉल आइडिया आई विल गिव, दैट इज अ हाउस ब्रेकफास्ट. ओके, सो continental breakfast, American breakfast, English breakfast and Indian breakfast, as well as there is a house breakfast too. So how many types of breakfast? Breakfast are generally 5 types. Okay, continental breakfast, American breakfast, English breakfast and Indian breakfast and house breakfast. So let's start with a English breakfast. We can start with a continental breakfast too, but we should know the English breakfast first. English breakfast are often considered as heaviest breakfast in the world, or it is considered as the heaviest breakfast, the heaviest meal. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? Why English breakfast can be considered as the heaviest meal of the day, or why English breakfast is the heavy breakfast? Because English breakfast के अंदर you will find everything, choice of egg, beverage, fruit juice, fish, meat, egg, cereals, juice, tea, coffee, bread toast, desserts, fruits, everything. So that is why English breakfast are often considered as the heaviest breakfast in the world, or it is the heaviest meal or heaviest breakfast. Let's check English breakfast का sequence. तो सबसे पहले तो English breakfast में there will be a choice of fresh fruit. अब हम यहाँ पे आपको एक आइडिया देते हैं. ओके, लेट्स डिकोड. There are 2 kind of fruit juice. I have already, I think, discussed in the French classical menu too. मैंने फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में I have already discussed कि हमारे पास 2 तरीके का ब्रेकफास्ट होता है, 2 तरीके का जूस होता है. एक आता है फ्रेश जूस, एक आता है कैंड जूस. अच्छा, फ्रेश जूस का एकम्पेनिमेंट कुछ नहीं होता है. जब हम एकम्पेनिमेंट पढ़ रहे थे यू मस्ट हैव सीन. बट अगर कैंड जूस है द एकम्पेनिमेंट विल बी सॉरी, फ्रेश जूस अगर है तो उसका एकम्पेनिमेंट होगा, बट कैंड जूस होगा तो उसका कोई एकम्पेनिमेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जूस जो फ्रेशली जूस ब्लेंड करके जूस पिया जाता है उसमें शुगर के मात्रा बहुत कम होते हैं. बट अगर कैंड जूस है वो केमिकली प्रिजर्वेटिव्स देके बनाया जाता है, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड विच हैव ए हाई अमाउंट ऑफ शुगर. तो इसीलिए उसको दोबारा स्वीट करने का कोई दरकार नहीं है. बट फ्रेश फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट को दोबारा स्वीट किया जा सकता है, क्योंकि फ्रूट का नेचर के ऊपर उसका स्वीटनेस डिपेंड करता है. तो फ्रेश फ्रूट ऑलवेज इट्स अ फ्रूट जूस आपको सबसे पहले खिलाया जाएगा इंग्लिश ब्रेकफास्ट में, फ्रूट जूस. ठीक है, फ्रूट जूस हैज़ टू बी फ्रेश. फ्रेश मतलब फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश एप्पल, फ्रेश मैंगो, फ्रेश ऑरेंज, फ्रेश टमाटो. तो इट इज़ अ जूस विच इज़ फ्रेशली ब्लेंडेड, और फ्रेश फ्रूट से, डायरेक्ट फ्रूट से ब्लेंड करके बनाया जाता है. दैट इज़ अ फ्रेश फ्रूट जूस. ठीक है, उसके साथ कोई एकम्पेनिमेंट, उसके साथ कास्टर शुगर की जरूरी होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्वीटनेस कम होता है. एंड टोमेटो जूस अगर है उसका एकम्पेनिमेंट में हम पढ़ चुके हैं, एक क्लास पहले ही पढ़े थे, दैट इज ओर्सेस्टरशायर सॉस. ओके, क्लियर. फिर आता है कट फ्रूट्स. अच्छा, फ्रूट जूस खाने के बाद हमको खिलाया जाएगा कट फ्रूट्स. बहुत सारे फ्रूट हो सकते हैं. देयर मे बी एप्पल, मे बी मेलॉन, मे बी बनाना, मे बी पपाया. जेनरली मेलॉन और पपाया और ग्रेप फ्रूट यानी कि अंगूर, पपैया, पपीता और मेलॉन्स. मेलॉन मतलब बहुत सारा मेलॉन होता है, उगेन, कासाबा, हनी ड्यू, कैंटलॉप, वाटरमेलन जनरली आपको होटल्स में दिख जाएगा. यही फ्रूट क्यों कट हुआ मिलता है? कट फ्रूट मतलब फ्रूट को काट के बुफे में सजाया जाएगा. कैन एनीबडी टेल कि यही फ्रूट क्यों ब्रेकफास्ट में मिलता है? यही 4-5 प्रकार का फ्रूट क्यों एप्पल नहीं मिलता है?
क्यों बनाना भी नहीं देनी चाहिए कट के, बट बनाना विथ स्किन उसको होली रखा जाता है। बट मेलॉन एंड पपाया यही दो काट के दिया जाता है। बाकी फल जैसे कि पीच यानी कि नाशपाती, एप्पल, ये सब क्यों काट के नहीं दिया जाता है? इसीलिए नहीं दिया जाता है, उसको काटने के बाद जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है उसके अंदर एक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग पैदा होता है, इसीलिए वो फ्रूट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ब्रेकफास्ट। तो उसीलिए जनरली आप अगर कोई भी होटल में देखोगे, ओनली सुइटेबल फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट इज़ मेलॉन, पपाया, अंगूर, नहीं तो बनाना। फिर आता है स्ट्यूड फ्रूट। स्ट्यूड फ्रूट मतलब इट्स लुक लाइक अ जैम, ठीक है, इट्स लुक लाइक अ जैम, ठीक है, जैम, पम, एप्पल, स्ट्यूड फ्रूट, फ्रूट कॉम्पोते बोला जाता है उसको। चॉइस ऑफ सीरियल्स, मुजेली, पोरिडाज, राइस फ्लेक, व्हीट फ्लेक विथ हॉट और कोल्ड मिल्क, ओट्स, ठीक है। सीरियल्स मतलब ब्रेकफास्ट का सीरियल्स होता है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चोको फ्लेक्स हो गया, ओट्स हो गया, आपका मुजेली हो गया, पोरिडाज हो गया, ये सारे जो है चॉइस ऑफ फ्रूट्स है, सीरियल्स है। फिर आता है फिश। फिश में आपका ग्रिल्ड फिश हो गया, पोच्ड फिश हो गया, स्टीम फिश हो गया, बॉइल्ड फिश हो गया। कभी भी फ्राइड आइटम ब्रेकफास्ट में अवॉइड किया जाता है। हम लोग बिंदास ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा भी खा लेते हैं, बट फ्राइड आइटम, ऑयली फ्राइड आइटम शुड बी अवॉइडेड इन ब्रेकफास्ट ऑलवेज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑयली फ्राइड आइटम इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड, ऑलवेज, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ओके, देन फिश में बॉइल्ड, ग्रिल्ड, पोच्ड, स्टीम्ड, ठीक है, ये सब फ्राइड नहीं है। एग, एग में होता है फ्राइड, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड, पोच्ड, बॉइल्ड। मीट, हैम, बेकॉन, सलामी, बेकॉन मतलब नाभि, सॉसेज मतलब वो लंबा लंबा होता है, पूरा मिंस्ड मीट उसमें रहता है, ठीक है। चॉइस ऑफ ब्रेड, चॉइस ऑफ ब्रेड में आपका ब्रेड टोस्ट हो गया, क्रोसॉन, जैम, जेली, ठीक है, ये सब हो गया। लास्ट में बेवरेज, टी, कॉफ़ी, मिल्क, हॉर्लिक्स जो भी है। तो इतना सारा आइटम जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में रहता है, इतना सारा, ठीक है। फ्रूट जूस, चॉइस ऑफ फ्रूट जूस रहेगा, कट फ्रूट्स रहेगा, स्ट्यूड फ्रूट, स्ट्यूड फ्रूट मतलब फ्रूट कॉम्पोते, ठीक है। चॉइस ऑफ सीरियल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मुजली हो गया, ओट्स हो गया, पोरिडाज हो गया, राइस फ्लेक्स हो गया। फिश में फिश, मीट, एग, मैंने बोला है तीनों रहता है, और बेवरेज। इसमें जितना भी आपको आइटम देख रहा है ना, इसमें ये जो चॉइस ऑफ ब्रेड है ये एक्चुअली चौथा नंबर में आ जाएगा। लास्ट में एक्चुअली ये एग, मीट, फिश को सर्व होता है सर्विंग के टाइम पे। सर्विंग के टाइम में सबसे पहले जूस, फिर फ्रूट कॉम्पोते, फिर सीरियल, फिर टोस्ट, फिर टी, कॉफ़ी, और लास्ट में आपका मीट, एग, फिश में जो आइटम होगा वो सर्व होगा। अब देखते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट का कवर क्या होता है। देखो, कवर में रहेगा जॉइंट नाइफ, जॉइंट फॉर्क। क्यों रहेगा? क्योंकि जॉइंट नाइफ, जॉइंट फॉर्क से हमने बहुत बार बताया, कवर कल ही पढ़ रहे थे, जितने भी चिकन का मैंने ये होता है, मीट, चिकन, ये सब होता है, तो उसको जॉइंट नाइफ मतलब लार्ज नाइफ, लार्ज फोक से खाया जाता है, तो वो रहेगा। जूस ग्लास, अंडरलाइनर, टी स्पून। जूस ग्लास, पौनी ग्लास हम बोले थे इसको भी, 5 आउंस का पौनी ग्लास होता है, उसके साथ अंडरलाइनर और टी स्पून के साथ दिया जाता है। फिश नाइफ, फिश फॉर्क, फिश का आइटम है तो फिश नाइफ, फिश फॉर्क तो रहेगा ही। डेजर्ट स्पून एंड डेजर्ट फॉर्क, ये एक्चुअली ऑल पर्पस स्पून फॉर्क है, ठीक है। साइड प्लेट, एक साइड प्लेट रहेगा, एक BNB नाइफ रहेगा बटरिंग करने के लिए, नैपकिन रहेगा, ब्रेड बोट रहेगा जहाँ पर ब्रेड का स्टैकिंग होता है ब्रेड खाने के लिए, टोस्ट रैक होगा, बटर डिश जरूर होगा, बटर डिश क्योंकि ब्रेकफास्ट आइटम है, बटर डिश तो रहेगा। प्रिजर्व डिश मतलब जैम, जेली, मार्मलेड, वो रहेगा। ब्रेकफास्ट कप विथ अ सॉसर एंड ए टीस्पून। ब्रेकफास्ट कप कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड ऑफ द गेस्ट में ब्रेकफास्ट। जॉइंट नाइफ एंड जॉइंट फॉर्क कहाँ रहेगा? जॉइंट नाइफ रहेगा राइट हैंड साइड, जॉइंट फोर्क रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। जूस ग्लास, अंडरलाइनर विथ अ टीस्पून कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड।
फिश नाइफ, फिश फॉक लेफ्ट हैंड साइड, फिश नाइफ राइट हैंड साइड। डेजर्ट स्पून होगा ऊपर में, डेजर्ट फॉक होगा उसके बिल्कुल नीचे, ऊपर में। साइड प्लेट लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बीएनबी नाइफ साइड प्लेट के ऊपर रखा होगा। नैपकिन साइड प्लेट के ऊपर रखा होगा। ब्रेड बोट सेंटर ऑफ द टेबल रखा होगा। टोस्ट रैक सेंटर ऑफ द टेबल रखा होगा। बटर डिश सेंटर ऑफ द टेबल रखा होगा। ब्रेकफास्ट कप एंड सॉसर एंड टी स्पून, कप सॉसर और टी स्पून रखा होगा। उसमें शुगर बेसिन एंड टोंग, ठीक है, स्लॉप बेसिन, टी स्ट्रेनर, सीरियल बाउल, सॉल्ट एंड क्रूएट सेट, एस्ट्रे। ये हो गया आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट का कवर। समझ में आ गया? अब आते हैं अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अमेरिकन ब्रेकफास्ट सेकेंड पोजीशन में आता है हेवी के मामले में। एकदम आंख बंद करके सेम टू सेम एज इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गए। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ना, ये सब जो कॉन्टिनेंटल इंग्लिश ब्रेकफास्ट में सर्विस ऑफ वाटर इज ऑप्शनल। हाँ, इतना याद रखिएगा, ब्रेकफास्ट में एक्चुअली सर्विस ऑफ वाटर जो है वो ऑप्शनल है। वाटर सर्विस का ब्रेकफास्ट में जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं है नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंने एकदम ही मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन ब्रेकफास्ट शुरू होते हैं चिल्ड वाटर से, ये एक अंतर है। और एक अंतर है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट में फिश सर्व नहीं होता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड अमेरिकन ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? इंग्लिश ब्रेकफास्ट में फिश, एग, मीट तीनों ही देखे हैं, बट अमेरिकन ब्रेकफास्ट में फिश जो है वो सर्व नहीं होगा। दैट कैन नॉट बी सर्व्ड। फिश सर्व अमेरिकन ब्रेकफास्ट के मामले में नहीं होगा, ये सर्व नहीं हो सकता। समझ में आ गया? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अमेरिकन ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? तो हाँ, एक ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट डू नॉट हैव, इंग्लिश ब्रेकफास्ट डू नॉट हैव एनी काइंड, हैव ऑल द टाइप्स। अमेरिकन ब्रेकफास्ट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फिश आइटम नहीं रहेगा। तो फिश आइटम नहीं रहेगा तो चॉइस ऑफ फ्रूट हमने बताए, फ्रूट जूस बताएं, चॉइस ऑफ सीरियल्स बता दिए, मिल्क बता दिए, एग रहेगा, मीट रहेगा, ब्रेड बटर रहेगा, बेवरेज रहेगा। सब कुछ सेम एज आप देख पाओगे यहाँ पे, जॉइंट नाइफ, जॉइंट फॉर्क, सब कुछ लिटरली सेम एज इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक ही चीज़ सिर्फ नहीं है, दैट इज़ फिश नाइफ, फिश फॉर्क, बिकॉज उसमें फिश नाइफ, फिश फॉर्क का जरूरी नहीं था। और एक अंतर बताया, क्या अंतर था? इंग्लिश ब्रेकफास्ट में सर्विस ऑफ वाटर इज नॉट मैंडेटरी। अमेरिकन ब्रेकफास्ट शुरू ही होता है चिल्ड वाटर से, याद रहेगा। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट को माना जाता है सबसे लाइटेस्ट ब्रेकफास्ट। कुछ नहीं रहता है, खाली ब्रेड, बटर, चाय, कॉफ़ी, दैट्स इट, कुछ नहीं। चॉइस ऑफ फ्रूट जूस होगा तो होगा, नहीं तो ब्रेकफास्ट रोल, टोस्ट, क्रोसॉन, मफिन, ये सब, जैम और टी कॉफ़ी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। खाली जूस, चाय, कॉफ़ी और उसके साथ ब्रेड टोस्ट, ब्रेकफास्ट रोल्स, ये सब, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं रहेगा, नथिंग। समझ में आ गया? तो दिस इज द सिनेरियो। तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में चॉइस ऑफ फ्रूट जूस, असॉर्टेड ब्रेड्स एंड टी, कॉफ़ी, मार्मलेड, बेवरेज, बस दैट्स इट, नथिंग इज मोर रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? कवर में क्या होगा? जूस ग्लास अंडरलाइनर, क्योंकि जूस है, साइड प्लेट रहेगा,
BNB नाइफ साइड प्लेट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड, नैपकिन साइड प्लेट में, ब्रेड बोट सेंटर में, बटर डिश सेंटर में, प्रिजर्व डिश सेंटर में, ब्रेकफास्ट कप विथ टी स्पून सामने, कोल्ड मिल्क एस्ट्रे, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहेगा। अब आते हैं इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियन ब्रेकफास्ट सबसे ईजीएस्ट ब्रेकफास्ट में माना जाता है, ठीक है। इंडियन ब्रेकफास्ट, हम लोग सारे इंडियन हैं तो वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ इंडियन ब्रेकफास्ट आर देयर। इंडियन ब्रेकफास्ट में भी सब कुछ होता है, नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। स्टार्टर्स यूजुअली लस्सी इन नॉर्थ, कोकोनट वाटर इन द साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। स्टार्टर मतलब जहाँ पे हम लोग फ्रेश जूस दे रहे थे, इंडिया में आएंगे तो जूस में क्या है, अगर नॉर्थ साइड है तो उसमें जूस आएगा आपका लस्सी, और कोकोनट वाटर है तो उसमें आएगा साउथ इंडियन में। सेकेंड कोर्स में क्या है, आपका आ जाएगा जितने भी माने अगर नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में पराठा, छोले भटूरे, पूड़ी भाजी, ये सब। अगर साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन में मेदू वड़ा, इडली, पोहा, साबूदाना का खिचड़ी, ये दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, दैट इज इंडियन ब्रेकफास्ट। बेवरेज टी, कॉफ़ी, बॉर्नविटा, ये सब तो जानते हैं। अब हमने बोले थे एक आता है आपका एक्स्ट्रा हाउस ब्रेकफास्ट। हाउस ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा जो होटल होता है ना, वो छोटा होटल्स में क्या होता है, उस होटल के नाम पहले होके उसके एकदम एक कॉम्बो ब्रेकफास्ट मिलता है। जैसे कि पूड़ी भाजी सैंडविच एक दाम रख देगा, ऐसे। जैसे कि अगर हम रॉयल फुल्लर मुजफ्फरपुर को ले ले तो रॉयल फुल्लर ब्रेकफास्ट ऐसा नाम होगा, ओबेरॉय स्पेशल ब्रेकफास्ट, उसमें कुछ नहीं, 2-4 आइटम का ब्रेकफास्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाउस ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब आते हैं बुफे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में तो बुफे लगता ही है, एज पर इंडस्ट्री नॉर्म आपको बुफे लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप के लिए, नॉर्मल गेस्ट के लिए भी, तो उसमें मिक्स एंड मैच रहता है, ठीक है। एक आता है ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड, ये भी जान लो, ये एक्चुअली गेस्ट एसेंशियल होता है, ये गेस्ट के रूम में रहता है। अगर कोई गेस्ट रेस्टोरेंट में आके या फिर नीचे आके अपना ब्रेकफास्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहता है, वो क्या करता है, उसको ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ कुछ डिश होता है, उसको वो टिक कर देता है, उसको जो जो सामान चाहिए वो उसी उसको टिक कर देता है, टिक करके दरवाजे के बाहर उसको टंगा देता है। और जब भी कोई रूम सर्विस वाला सुबह, उसका काम होता है ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड को कलेक्ट करना, उस हिसाब से उसके रूम में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड हो जाता है, दैट इज़ अ ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ रिलेटेड टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है ये हम बता रहे थे। ये जो पहला रिलेटेड टर्म्स है ना, ये टर्म्स जो है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के साथ जाते हैं। कैफे सिंपल, सिंपल माने सिंपल, ओनली कॉफ़ी, नथिंग टू इट। मतलब कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज कैफे सिंपल। द सिंपल मतलब अगर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में खाली चाय पीने के लिए दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो, दैट इज़ अ द सिंपल। कैफे कॉम्प्लेट, पूरा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के साथ कॉफ़ी दे रहे हो, दैट इज़ ए कैफे कॉम्प्लेट। द कॉम्प्लेट, द कॉम्प्लेट होता है कि अगर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के साथ आप चाय दे रहे हो तो वो द कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट मतलब पूरा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विथ, द मतलब टी, द एक्चुअली फ्रेंच टर्म ऑफ टी है, कैफे फ्रेंच टर्म ऑफ कॉफ़ी है। तो कैफे कॉम्प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विथ कॉफ़ी, एंड द कॉम्प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विदाउट माने विथ टी। कैफे सिंपल मतलब सिर्फ कॉफ़ी और कुछ नहीं। द सिंपल मतलब सिर्फ चाय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनिमल्स, लैम, बुल, ये सब होते हैं। बगल्स एक्चुअली अब ब्रेड है, जीविश रीजन का बगेल, छल्ला, ये सब ब्रेड आता है, ठीक है। मुजेली आप जानते हो, मिक्सचर ऑफ सीरियल्स। ब्रियोश इज ए फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। ब्लोटर माने होल हेरिंग, मतलब मछली जो होता है, गुड क्वालिटी ऑफ हेरिंग, ड्राई
ठीक है। कॉम्पोथ स्ट्यूड, क्रोसॉ, क्रोसॉ, क्रोसॉ आप जानते हो, मफिन भी जानते हो, रिच कप केक होते हैं, ठीक है। ग्रानोला, ग्रानोला रोल्ड ओट्स विथ वाटर, वेजिटेबल ऑयल, स्वीट नट्स, ये सब आपके। केजरी, केजरी एक्चुअली खिचड़ी होता है, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी और कुछ नहीं। कीपर्स, स्लिट हेरिंग, कट करके उसको। मार्मलेड होता है, सिट्रस फ्रूट से बनता है, जैम जेली के जैसा होता है, ठीक है। मूसेली मैंने बोला है, ओट्स भी मैंने, आप जानते हो, पोरिटाज भी जानते हो, स्वीट ब्रेड, कलनरी आइटम फॉर थाइम, लैम्प पीस, ये सब, ठीक है। टेबल मार्जरिन विथ अ मिनिमम फैट कंटेंट ऑफ 80%, लेस देन 90% सोया, सनफ्लावर, पाम ऑयल, ये सब में मिलता है। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्रेकफास्ट चैप्टर। I will share you the PPT and you will take it down the notes. Okay. Next class we will be able to share you the last chapter, that is a buffet. We will know all about, all know how of buffet, all know how of room service. Okay. So that is it for today. Okay. Thank you, students.